Good evening, everyone. Very warm greetings to all from Siddham, an Institute of Indic and Intercultural Studies, nestled in the heart of Varanasi, the spiritual capital of India, working tenaciously in teaching various courses to protect ancient heritage. Welcome to the inaugural session of Prakrit language course. I would like to extend heartfelt greetings to our General Secretary, Dr. Anirvan Das, Program Director, Dr. Viva Pandey, all founding committee members, and to all the participants for showing such zeal and enthusiasm in joining us today. I would like to invite Dr. Simarjit Kaur to introduce us with course instructor. Dr. Simarjit Kaur. Thank you so much, Vikram, for heartfelt welcome. I welcome to this inaugural session for Prakrit language course. It's our great honor to introduce our esteemed course instructor, Dr. Vandana Mehta. Dr. Mehta is a dedicated scholar specializing in Prakrit and Jain canonical literature. Currently, she serves as an assistant professor at Jain University in Bangalore. With over 17 years of experience in teaching and research, Dr. Mehta has made a significant contributions to the field. She has authored 11 books and over a dozen of research articles, showcasing her depth of knowledge and commitment to advancing our understanding of Prakrit language. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Vandana Mehta. We look forward to her fruitful and enlightening learning experience under her guidance. Thank you. Dr. Mehta, please. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Let's start. All join. Yes, we may begin. Okay. Slide दिख रही है मैम? Slide visible? Folder is visible, not the slide. Folder? Yes. Oh. 1 minute. Oh. Hello, ma'am. Good evening. Yes, visible? Yes, it's visible now. Perfect. History and development of Prakrit language and literature. यही आ रहा है स्क्रीन पे, I think. Yes. Perfectly, ma'am. You can go ahead. Okay. सबसे पहले हम मंगलाचरण नमस्कार महामंत्र से शुरुआत करना चाहते हैं. Development of Prakrit language literature. Yeah, आवाज रिपीट हो रही है, I think. YouTube live. No, ma'am, it's clear. Yeah, okay. नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंचनमक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्. तो सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सर्वेभ्यो नमः. आज इस प्राकृत 1 मंथ प्राकृत कोर्स में आप सभी का वेलकम, स्वागत है. सबसे पहले हम ग्रामर जानने से पहले हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये लैंग्वेज क्या है और इसका लिटरेचर क्या है, इसको एकदम बहुत शॉर्ट में आज बात करना चाहते हैं. सो फर्स्ट देखिए, जो लैंग्वेज है वो क्या है कि लिंग्विस्टिक लोगों ने, स्कॉलर हैज डिवाइडेड इनटू ऑल लैंग्वेज 18 लैंग्वेज फैमिली. सबसे पहले तो इंडिया मतलब विश्व भर में जितनी भी भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड को लेकर, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक उनका कहना है कि 7,000 और सम सेज 3,000 लैंग्वेज हैं. और उसमें भी हम यदि देखते हैं
तो 18 लैंग्वेज फैमिली मुख्य है, 18 लैंग्वेज फैमिली, और उसको भी फिर वापस कम करते हैं तो 18 लैंग्वेज फैमिली फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लैंग्वेज फैमिली। सो 4 लैंग्वेज फैमिली यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड प्रशांत महासागरी, ऐसे करके ये 4 लैंग्वेज फैमिली होती है। इसमें जो सबसे बड़ा है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। आई थिंक सबने नाम सुना होगा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। उसी का एक सब ब्रांच है आर्यन लैंग्वेज फैमिली। सो 18 फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड प्रशांत महासागरीय। और अ, उसी यूरेशिया में से इंडो यूरोपियन फैमिली के आर्यन लैंग्वेज फैमिली में प्राकृत और संस्कृत एग्जिस्ट करती है। ओके, तो प्राकृत और संस्कृत कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के आर्यन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत। ओके, तो जो स्कॉलर हैव डिटरमाइंड 3 eras ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, और यही इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली जो है वो प्राकृत का जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल काल जो आता है वो इसी के अंतर्गत डिवाइड है। सो नंबर 1, एंशियंट इंडो आर्यन लैंग्वेज 1600 BC टू 600 BC, एंड सेकेंड वन है मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली 600 BC टू 1000 AD, एंड मॉडर्न इंडो आर्यन का जो समय है वो है 1000 AD टू टिल डेट। ये सारा प्राकृत का अकॉर्डिंग टू लिटरेचर में जो प्राकृत के रूप देखे जाते हैं उस हिसाब से ये 3 लैंग्वेज 3 टाइम पीरियड बन जाते हैं, OIA, MIA एंड NIA। इसके शॉर्ट फॉर्म भी इस तरीके से आते हैं, OIA, MIA और न्यू इंडो आर्यन, सो NIA। तो एंशियंट इंडो आर्यन लैंग्वेज, मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज। फर्दर इसमें लैंग्वेज, इसके भी 2 स्टेजेस हैं, प्राइमरी स्टेज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। अब प्राकृत प्राइमरी में कौन सी पोजीशन है? सो प्राइमरी में सबसे पहले 1600 BC टू 600 BC अवेलेबल इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का टाइम अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन 1600 BC टू 600 BC है, और ये जो 600 BC का जो समय है लॉर्ड महावीर और लॉर्ड बुद्ध का समय है। तो ये जो प्री वैदिक लैंग्वेज है, प्री वेद और वेद के समय प्राकृत किस तरह अस्तित्व थी, तो उसके कई सारे एग्जाम्पल सिमिलरिटीज जो है वो प्राकृत की वैदिक लिटरेचर के साथ हम देखते हैं। से कई एग्जाम्पल मिलते हैं, लाइक कृत का कुठ प्रयोग। स्लाइड बराबर दिख रही है, बड़ी करूं? कृत का कुठ प्रयोग ऋग्वेद में इसका एग्जाम्पल आया है, 1S46 का 4, और युष्मान का युष्मा वाजसेनीय संहिता में ये मिला है। यानी सेम जो प्राकृत में एग्जाम्पल मिलता है कि जैसे अंत में, एंड में क्या होता है, हलंत पोजीशन प्राकृत में कभी नहीं होती है। ये प्राकृत का एकदम बेसिक रूल है, हलंत। और ये जो युष्मान है, युष्मान जो व्यंजन के साथ हलंत है, यानी कॉन्सोनेंट के साथ हलंत है, वो पूरा ही चला जाता है। सेम रूल प्राकृत में अंत व्यंजनस्य मिलता है और उसका युष्मा प्रयोग। ऐसा ही एग्जाम्पल वाजसेनीय संहिता में जो वैदिक पीरियड का है और वैदिक लिटरेचर जिसको कह सकते हैं। इसी तरीके से पश्चात का अच्छा, इसमें भी सेम वही है, हलन व्यंजन सहित हलंत यहाँ पर चला गया है। अथर्ववेद में इसका एग्जाम्पल मिलता है। नेक्स्ट है उच्चात का उच्चा, ये भी हलंत है, व्यंजन सहित ये चला गया है। निच्चात का निच्चा, होदी का होदी और भवई, ये प्रयोग भी मतलब वैदिक साहित्य में मिलता है। एंड सत्य ही ये सेम तत्सम, यानी 3 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज।
तत्सम का मतलब सेम, संस्कृत से हूबहू प्राकृत में आए हैं। तो ऐसे शब्द भी वैदिक साहित्य में मिलते हैं। तो वैदिक लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे शब्द मिले हैं जिसके आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय प्राकृत अस्तित्व में थी। ओके, विच आर स्टिल एग्जिस्टेंस, मतलब अभी भी उसका अस्तित्व है। सो वी कैन से कि प्राकृत वॉज कंटेम्परेरी टू वैदिक लिटरेचर। हम लिटरेरी एस्पेक्ट से यदि देखते हैं, लिटरेरी एस्पेक्ट से, तो हमें लिटरेचर जो है इंडिपेंडेंट रूप में वह जैन कैनोनिकल लिटरेचर और फिर पाली लिटरेचर आदि मिलता है, और वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, उस समय की जन बोली में लिखा गया है, लाइक अर्धमागधी, पाली, और इस तरीके से कई तरह की प्राकृत के डायलेक्ट्स भी मिलते हैं। तो ऋग्वेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तरीय संहिता आदि आदि विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में हमें सेम प्राकृत के रूप मिलते हैं। सो इस कारण से हम कह सकते हैं कि प्राकृत वाज कंटेम्परेरी टू द वैदिक लिटरेचर। अब सेकेंडरी एज, आपको ये डेट पीरियड याद रखनी होगी कि फर्स्ट एज का टाइम पीरियड क्या है, 1600 BC टू 600 BC। ये 1000 ईयर का समय है, जो ऑलमोस्ट वैदिक पीरियड है, जिसमें वेद से लेकर उपनिषद तक का समय है। एंड जो सेकेंडरी स्टेज आ रही है प्राकृत लैंग्वेज की, उसमें भी वापस 3 है। अर्ली एज में 600 BC टू 200 BC। देखिए ये समय हुआ लगभग, टोटल मान सकते हैं इसको 800 का, 800 ईयर का ये समय है। और इसमें प्राकृत में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। और मिडिल एज में 200 AD टू 600 AD, और लास्ट जो है एज ऑफ अपभ्रंश 600 AD टू 1200 AD। तो इसमें टोटल प्राकृत का एग्जिस्टेंस आ जाता है सेकेंडरी स्टेज में। और आज भी प्राकृत का अस्तित्व जिस रूप में हम देख रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट, देखिए प्राकृत इन अर्ली एज 600 BC टू 200 AD। तो इसमें हमें रूप कितने 5 टाइप्स की प्राकृत मिलती है। आर्ष प्राकृत, पाली प्राकृत। आर्ष के 3 फॉर्म हैं। आर्ष बोले तो जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जिन्होंने अपने ज्ञान से देखा है, वो प्राकृत आर्ष प्राकृत है। तो इसमें 3 फॉर्म है, पाली, अर्धमागधी और शौरसेनी। पाली और अर्धमागधी लगभग एक ही समय है, भगवान महावीर और बुद्ध का। कोई छोटा बड़ा थोड़ा बहुत ऐसा मानते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम टाइम है। एंड शौरसेनी लैंग्वेज, जो दिगंबर टेक्स्ट लिखे गए हैं, वो शौरसेनी लैंग्वेज में प्राप्त होते हैं। इसका सेकंड है इंस्क्रिप्शनल प्राकृत, थर्ड वन निया प्राकृत, फोर्थ जो है वह धम्मपद की प्राकृत, एंड फिफ्थ है प्राकृत इन प्लेस ऑफ अश्वघोष। ये मिडिल इंडो आर्यन का अर्ली एज में हम बात कर रहे हैं कि इतनी इतनी प्राकृतें उस समय एग्जिस्ट करती थी। कितनी प्राकृतें? आर्ष प्राकृत, आर्ष में पाली, अर्धमागधी, शौरसेनी, और सेकेंड शिलालेखीय प्राकृत, इंस्क्रिप्शनल प्राकृत जिसको कहते हैं, निया प्राकृत, धम्मपद की प्राकृत, और नाटकों में और स्पेशली अश्वघोष के नाटकों में जो प्राकृत प्राप्त हुई है, उसका समय है 600 BC टू 200 BC तक इसका एक्सटेंस था। तो जो प्राकृत है बुद्धिस्ट एंड जैन आगम की जो प्राकृत है, उसको हम पाली और अर्धमागधी कह सकते हैं। और whose oldest written form is considered to be older than inscriptional प्राकृत। Sometimes इसको हम inscriptional प्राकृत से oldest भी कह सकते हैं। लिटरेरी फॉर्म में यद्यपि आगम जो है या जैन कैनोनिकल टेक्स्ट है, वो बाद में लिखे गए थे, और त्रिपिटक साहित्य पहले लिखा जा चुका था, क्योंकि ऐसे कंडीशन थी जैनों के साथ में कि उसको याद ही रखना है, कंठ परंपरा में ही रखना है। लेकिन भगवान महावीर का समय चूंकि 600 BC 599 टू 527 है, ऑलमोस्ट यही समय माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि oldest written form is considered to be older than inscription Prakrit in view of its
एंटिक्विटी एंड बीइंग यूज्ड बाय ग्रेट मैन, और इसको आर्ट्स इसीलिए कहते हैं कि used by great men. The language of Agams is also called Harsh Prakrit. तो थ्री फॉर्म है पाली, और पाली आप सबको मालूम ही होगा कि पाली लैंग्वेज जो है, भगवान बुद्ध ने जो अपने वचन जिस भाषा में कहे, हालांकि उस समय पाली नाम नहीं था, पाली शब्द बहुत बाद में अस्तित्व में आया, उस समय उसको बुद्ध वचन कहा जाता था। भगवान बुद्ध ने जो कहा वो उसको बुद्ध वचन उस समय कहा जाता था। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज इन द त्रिपिटक टेक्स्ट, और उसकी भाषा जो है वो पाली कहलाई, और इसका जो एंशियंट फॉर्म है, प्राकृत लैंग्वेज वाज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ वेरियस डायलेक्ट ऑफ दैट टाइम इन विच इज बिलीव्ड दैट मागधी वाज प्रोमिनेंट, और इसका जो मूल सोर्स है वो मागधी को माना जाता है। ऐसा कहा भी गया है, सा मागधी मूल भाषा। देखिए इसमें लिखा है कि भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह त्रिपिटक ग्रंथों में है, और इन ग्रंथों की भाषा को पाली कहा जाता है। ये एक प्रकार की प्राकृत भाषा का प्राचीन रूप है, जिसका गठन तत्कालीन विभिन्न बोलियों जिसमें मागधी प्रमुख थी के मिश्रण से हुआ है, ऐसा माना जाता है। सो मागधी, और मागधी से फिर फर्दर अर्धमागधी की बात भी आती है। तो इस मागधी का बहुत सी भाषाओं में अपना योगदान है, कई सारे रूल इसके अन्य प्राकृतों ने लिए भी हैं। प्राकृत पाली के साथ भी ऐसा ही है। नेक्स्ट है अर्धमागधी भाषा। एक मिनट, किसी की आवाज आ रही, एक मिनट, 1 मिनट, म्यूट 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 कर लीजिए कोई अगर इसने ऑन कर रखा है तो। नेक्स्ट वन है अर्धमागधी लैंग्वेज। तो भगवान महावीर गेव हिज टीचिंग इन अर्धमागधी लैंग्वेज। इसका प्रमाण हमें स्वयं आगम ग्रंथों से ही मिल जाता है। तो एक टेक्स्ट है अंग सूत्र, उसके मूल जो टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट को अंग सूत्र कहा जाता है जैन कैनोनिकल टेक्स्ट में। उसमें समवायांग सूत्र है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग और समवायांग, फोर्थ जो अंग आगम है, वहां पर ऐसा कोटेशन मिल जाता है कि भगवम चणम अद्धमागी ये भाषाए धम्माइक। इसी तरीके से एक और उपांग सूत्र है, औपपातिक सूत्र, वहां पर भी एक गाथा आई है कि समणे भगवम महावीरे अद्धमाघीये भाषाए वासई। इस तरीके से अन्य अनेक जगह पर अर्धमागधी की भगवान महावीर ने अर्धमागधी भाषा में अपने उपदेश दिए, और उसको देववाणी कहा गया है। भगवती सूत्र में तो आता ही है कि ये जो भाषा है अर्धमागधी, ये देववाणी है, और निशी चूर्णी आदि आदि कई जगह पर अर्धमागधी के रेफरेंस मिलते हैं। तो इसका एरिया जो है वो मथुरा और उसके आसपास का, मथुरा और उसके आगे जो जाते हैं मगध, मगध का एरिया, जो भी प्रेजेंट में मगध एरिया है, उसके आसपास जो बोली डेवलप हुई थी वो अर्धमागधी लैंग्वेज कहलाती है। और अर्धमागधी इसको इसलिए भी कहा जाता है, मतलब सम स्कॉलर का ओपिनियन है कि this language Ardhamagdi because in this half of the characteristics are found in Magadhi Prakrit and half of the characteristics are found of other language, other Prakrit. But ये बात कितनी सही है हम नहीं कह सकते। कुछ सूत्र मागधी प्राकृत के या कुछ सोर्स जो है मागधी का प्रभाव अर्धमागधी पर हमको मिलता है, बट आधे लक्षण, हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स अर्धमागधी के साथ लागू नहीं होते हैं। ओके, तो इसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट में। ये आ गया, इसमें ये रेफरेंस आ ही रहे हैं, भगवम चणम अध्यमागी ये भाषा है, माइक कई, और विद्वान इस भाषा को अर्धमागधी कहते हैं क्योंकि इसके आधे लक्षण मागधी प्राकृत के हैं, आधे लक्षण अन्य प्राकृत के हैं। तो हम यदि ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर जो मागधी के 3 रूल हैं, स्पेशल रूल, एक तो है अत एत्सो पुंसी मागध्याम, यानी पुरलिंग सी को ए का प्रयोग मागधी प्राकृत की अपनी विशेषता है। अत एत्सो पुंसी मागध्याम एक सूत्र भी आता है, उसके हिसाब से वो ही सेम का सेम रूल अर्धमागधी के साथ जुड़ता है। तो अर्धमागधी में यदि जैन आगम किसी ने पढ़े हैं या किसी के ध्यान में है तो
वहां पर एकार का प्रयोग अधिक दिखाई देता है, जो मागधी का सीधा सीधा रूल अर्धमागधी के अंतर्गत आया है, उन्होंने कंसिडर किया है। लेकिन और भी जो विशेषताएं हैं मागधी की, कि र के और ल, ये जो दोनों ध्वनियां, रसोल सो, र के स्थान पर ल का प्रयोग, रसोल सो एक सूत्र आता है, तो र के स्थान पर ल, ये मागधी की विशेषता है। लेकिन यह बात अर्धमागधी के साथ कम बैठती है। कभी कभी इस तरह का प्रयोग, जैसे करुण शब्द है, करुण, करुण का कलुण प्रयोग भी अर्धमागधी के अंग आगमों में देखा जाता है, बट कभी कभी, अदरवाइज र का र प्रयोग ही देखा जाता है। और एक खास खास कैरेक्टरिस्टिक जो मागधी लैंग्वेज की है, वो है कि जो तालव्य श है, यानी ये जो श है तालव्य श, ये वाला फर्स्ट ही जो आता है, और हाँ, ये जो सेकंड स है, इनके स्थान पर स का प्रयोग, मतलब अर्धमागधी में स, फर्स्ट स एंड सेकंड स जो है, इसको इंग्लिश रोमन में ऐसे अलग टाइप से लिखते हैं। तो ऊपर डॉट एक तो वैसे आता है और एक ही स ऐसे आता है, तो इनके स्थान पर स का प्रयोग, जो इन जनरल सब प्राकृतों की एक विशेषता है, खास कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक ही स प्राकृत में मिलता है। तो अर्धमागधी में भी वही रूल है। लेकिन मागधी में ये जो फर्स्ट तालव्य, तालव्य श लेटल जो है, हाँ, ये वाला स ही मिलता है। हेलो ये, हाँ, ये सर। ma'am, actually we have some foreign students also and some South Indian students also, and यस they are यस requesting to just please give your is if it's possible, please explain in English too, ma'am. यस And यस also या screen is very small. Can you make large, little large, ma'am? एक मिनट, दिखाई दे रहा है सर? जी, थोड़ा सा। और बड़ा? जी, बस इनफ, इतना इनफ। है ना? जी, थैंक। ओके। सो देखिए, इट इज यूज्ड इन द प्ले सारे पुत्र प्रकरण। ये जो अर्धमागधी का प्रयोग है, वो सारी पुत्र प्रकरण एक नाटक है, सारी पुत्र बाई अश्वघोष का, वहां पर इस तरह का प्रयोग, मतलब अर्धमागधी का प्रयोग दिखाई देता है। तो यहाँ पर बोथ साउंड र एंड ल एंड द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म आर बोथ एंडिंग इन ए, एंडिंग इन ए का प्रयोग मागधी में और वैसा ही अर्धमागधी में होता है। और दूसरा है कि बोथ स एंड स, ये पैलेटल, मैं यहाँ से इसको कर सकती हूँ क्या, एक मिनट, ये जो स है, लाइक दिस वन, ये वाला, ये जो है, तो ऐसे, यानी ऊपर एक ऐसा थोड़ा सा रहता है, यहाँ पे मैं करूँ, स एंड ये स, ये स का ऑल प्राकृत में सिंपल स होता है, ठीक है, ये डॉट एंड देन दिस वन, तो पैलेटल और ये वाला। लेकिन मागधी में ओनली दिस एग्जिस्ट, ओके, यानी ये वाला सही रहता है। तो ये व्यवस्था, मतलब इस तरह का नियम अर्धमागधी के साथ नहीं आया है। तो डेंटल कॉन्सोनेंट ऑफ द पैलेटल एक्सेट्रा, इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दंत्य व्यंजन को मूर्धन्यादेश आदि इसकी अन्य विशेषताएं बन जाती है। ओके, तो अर्धमागधी पर मागधी के रूल बहुत कम ही प्रयोग में आए हैं। हालांकि मागधी से अर्धमागधी का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, आर्ट्स की खास विशेषता यह है कि सभी एक्सेप्शनल विशेषता रूल्स वहां पर लगते हैं। विकल्प, यानी वैकल्पिक विधि जिसको बोलते हैं, प्राकृत में अधिक चलती है, तो वैसा ही प्रयोग अर्धमागधी में दिखाई देता है। अर्धमागधी या आर्ट्स प्राकृत की खास विशेषता होती है, एक्सेप्शनल रूल। ओके, नेक्स्ट वन है शोरशैनी लैंग्वेज। शोरशैनी लैंग्वेज
तो दिगंबर ट्रेडिशन और दिगंबर टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है, द टेक्स्ट ऑफ दिगंबर ट्रेडिशन लाइक खंडागम, कषाय, पाहुड़ एक्सेट्रा वर रिटन इन शोरशेनी लैंग्वेज. Shorshani, ancient form of Shorshani are found in the inscriptions of Ashoka. शोरसेन मथुरा के आसपास के प्रयुक्त होने वाली जन भाषा को शोरसेनी प्राकृत के नाम से जाना जाता है. मथुरा अभी जो यूपी साइड में है मथुरा, और उसके जो नियर प्रदेश हैं वहां पर अराउंड मथुरा, वहां पर जो नॉन एज लैंग्वेज है वो शोरसेनी प्राकृत है. सिंस इट इज द लैंग्वेज ऑफ मध्य देश, यानी इंडिया के जो मिडिल एरिया में जो लैंग्वेज है वहां पर इस प्राकृत का अस्तित्व था, और इसके कारण ही इसका रिलेशन जो है क्लोज रिलेशन विद संस्कृत एंड रिमेन कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. तो संस्कृत से ये बहुत प्रभावित रही है. इसकी खास दो तीन विशेषताएं हम देख लेते हैं. मेन फीचर्स क्या है इसके? इट मेन फीचर्स हैं तो दो अनादो शोरसेन्याम संयुक्तश्च. मागधिका में शोरसेनिका सॉरी शोरसेनी में इटर्नल एंड अनजॉइंट बिकम दो, त को द, यानी इटर्नल मतलब और अनजॉइंट असंयुक्त, अनादि, इनिशियल नहीं होना चाहिए, इनिशियल और मतलब इटर्नल बोल सकते हैं इसको, और अनजॉइंट बोल सकते हैं. अनजॉइंट त को द होता है. लाइक जैसे मरुतीना का मरुदीना. ये जो त एग्जिस्ट है यहाँ पर, ये त यह इनिशियल में नहीं है, इंटरवोकेलिक पोजीशन है और अनजॉइंट है. सो इसको हम कह सकते हैं, मतलब ये शोरसेनी लैंग्वेज में त का द फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है, यह शोरसेनी प्राकृत की खास विशेषता है जिससे इसकी पहचान मोटा मोटी की जा सकती है. एंड लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि द त जो है दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ध. सॉरी, ये थर्ड थर्ड में बोल रही हूँ, थोदह, कि पद में अनादि में होने वाले थ को ध विकल्प से होता है. जो सेकेंड वन है, सेकेंड वन को महाप्राण कहते हैं हम. इसमें स्वर और वोवेल और कॉन्सोनेंट में जो सेकेंड और फोर्थ होता है उसको महाप्राण बोलते हैं. और महाप्राण थ को ध जो है वो शोरसेनी की नेक्स्ट विशेषता है कि बिगिनिंग ऑफ एंड वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ध. ओके, सो ने ये विशेषता भी इसकी है. बट ये जो फॉर्म है फर्स्ट, अनादि और असंयुक्त, अनजॉइंट में त को द होता है. बट Ma'am, एक्सेप्शनल केस में, हाँ बोलिए. one doubt. This Vada is Tavati, हम्म 4 bar 262. What is the, this is the Prakrit Sutra. हाँ, यह प्राकृत सूत्र सिद्ध है शब्दानुशासन का सूत्र. In author, Vararuchi. वररुचि मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ. वररुचि हम वररुचि को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो सूत्र कुछ एकदम ग्लिम्स के रूप में है, तीन चार खास स्पेसिफिक विशेषता है. तो वो सिद्ध है शब्दानुशासन का जो फोर्थ चैप्टर है, 8वां अध्याय का भी चौथा फिर सब खंड, उसमें से ये लिया है. तो दो Ma'am, नादो will you शोरसेन्याम explain in संयुक्त. English? या आई विल ट्राई, आई एम ट्राइंग. ओके, सो नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मैम? I cannot follow the uh, Hindi What properly, and the slang is too much too difficult much for me. difficult? Uh, मैं कह रही हूँ कि इन शोरसेनी द वर्ड तावत हैज द इनिशियल त विद द ऑप्शनल द, यानी मतलब त को द विकल्प से इनिशियल फॉर्म में भी वहां पर त को द कभी कभी हो जाता है, ऐसा. ओके, मतलब मेन सूत्र तो आपका है ही कि हाँ, शोर okay. श्रेणी में इटर्नल अनजॉइंट बिकम जो है त को द, त को द होता है. ओके, अनजॉइंट में, अनजॉइंट और अनादि में. ठीक है, बट कभी कभी
समटाइम्स वो स्टार्टिंग इनिशियल में भी चेंज हो जाता है, जैसे तावत का दाव। ओके, ये हिंदी हिंदी वंद वंदना मैम, देवनागरी। यस यस यस। वंदना मैम, गौरव here. या Ma'am, can we say like this that yeah, Vade Tavadi, this sutra, when you say it, if word is means there is no dvitva. If there is no dvitva in between the word, means that there is no double sound. Then only it will change. Am I right? नो Because नो, these all consonants are full consonants along with the vowel. So if it comes in, you are saying that if there is if it is initial letter and या if it is non double sound, double consonant, then only it will be changed. Otherwise, it won't change. Am I right, ma'am? इनिशियल फॉर्म में भी ऑप्शनल में चेंज हो सकता है। वादे स्तावदी ये कहता है तावत का दाव। अदरवाइज ऑलमोस्ट और एवरी प्लेस इन अनजॉइंट और अनइनिशियल बोलो या इटर्नल बोलो बिकम्स द होता है। ओके, लेकिन you, ma'am. ये या थैंक यू। ओके, और ये तीन मतलब अभी हम शोरशनी की विशेषताएं नहीं देख रहे हैं, बट सिर्फ कि इन इन एरा में, यानी जो मिडिल एज का जो फर्स्ट एरा है, अर्ली पीरियड, उसमें कौन कौन सी प्राकृतिक अस्तित्व में थी, उतनी सी बात हमें करनी है। हम ग्रामर की बात जब करेंगे तब आगे समझेंगे, लेकिन ये लैंग्वेज की इसमें नहीं है। सिर्फ मैंने सिर्फ बताने के लिए कि ये मेन चेंजेस होता है। अब एक बात है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की, इंस्क्रिप्शनल प्राकृत। तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शनल जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन के हैं, वो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैनिज्म की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो एम्परर खारवेल बिल्ड द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑन द हिल्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी। उदयगिरी एंड खंडगिरी situated in Odisha. So this inscription in Prakrit are important from the viewpoint of literature and history. Many forms of Prakrit language are available in them. Okay, in this, the ancient form of the Namaskar mantra of Jain is found in Prakrit language. Namo Arhantanam, Namo Savvasiddhanam. जो नमस्कार महामंत्र का सबसे ओल्डेस्ट प्राचीन लिखित रूप जो है, इसी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। इसे पुराना कोई सोर्स नहीं है। ओके, सो दिस इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from the point of view of Jain history also, and Prakrit history also, and Prakrit period also. Next one is in middle age निया प्राकृत, धम्मपद की प्राकृत और अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत भी अस्तित्व में थी। So the language of writing obtained from Nia Pradesh, China, Turkestan, like is similar to Prakrit. The Prakrit language of this writing is related to Tokri language of Gardi class. तो बहुत फ्यू एकाध कोई पत्र लेटर इस तरह से मिला है वहां पर निया प्राकृत का, और निय प्रदेश होने से इसको निया प्राकृत कहा गया है। एक धम्मपद की प्राकृत है, तो टू धम्मपद ऑफ पाली लैंग्वेज ऑल्सो फेमस है, एंड धम्मपद इज ऑल्सो फाउंड इन प्राकृत विच वाज रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड अदर इज खरोष्टी स्क्रिप्ट विच इज रिलेटेड टू पैसाची एक्सेट्रा। ये जो प्राकृत धम्मपद है वो पैसाची भाषा से रिलेटेड भी है, एंड विच वाज पब्लिश्ड बाय B.M. बरुआ एंड N.S. मित्रा। फर्स्ट जो पब्लिश हुआ वो 1921 में हुआ, और अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत में हमें जो है हिज प्लेस में वो अर्धमागधी, शोरशनी, मागधी आर फाउंड इन अश्वघोष नाटक। सो मिडिल एज में यह तीन फर्स्ट उसके अर्ली पीरियड में पांच प्राकृत अस्तित्व में थी। आर्ष प्राकृत, आर्ष में आर्ष के तीन फॉर्म हुए, कौन से? पाली, अर्धमागधी एंड शोरशनी, और इसके अलावा निया प्राकृत, इंस्क्रिप्शन प्राकृत, और अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, और धम्मपद की प्राकृत। तो ये 5 टाइप्स की प्राकृत है अर्ली पीरियड में। फिर इसका एक मिडिल एज आता है, मिडिल एज में 200 AD टू
600 AD प्रॉस्पियस एरा ऑफ प्राकृत लिटरेचर, इसमें भी 3 प्राकृतें अस्तित्व में थी, महाराष्ट्री, मागधी एंड पैसाची लैंग्वेज। सो मिडिल एज में सबसे पहले महाराष्ट्र की प्राकृत की बात करते हैं तो हेमचंद्राचार्य ने, आचार्य हेमचंद्र, जिनका समय 12th सेंचुरी एडी है, और उन्होंने जो प्राकृत व्याकरण लिखी है ऑलमोस्ट। हाँ, Could you repeat the 5 types of early period Prakrits? या फर्स्ट आर्ट्स प्राकृत, आर्ट्स, ओके। तो आर्ट्स में भी 3 फॉर्म, पाली, अर्धमागधी एंड Okay. शौरसेनी। ओके, पाली, अर्धमागधी एंड शौरसेनी। पाली पाली लैंग्वेज भगवान बुद्ध की, अर्धमागधी जिसमें भगवान महावीर ने अपने लिटरेरी फॉर्म जो भी वचन उपदेश दिए, एंड शौरसेनी प्राकृत, दिगंबर टेक्स्ट की प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत। ओके, एंड अगेन inscriptional Prakrit, जिसमें Ashokan inscription also written in Brahmi script and Prakrit language, and second one is Kharvel, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो सम्राट खारवेल ने बनाया था उदयगिरी खंडगिरी पर की पहाड़ियों पर, जो उड़ीसा में है। उसकी भी भाषा प्राकृत है, और वो जैन हिस्ट्री की दृष्टि से उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड वन है निया प्राकृत, निया प्रदेश चीनी तुर्किस्तान के पास, एंड धम्मपद की प्राकृत, एंड अश्वघोष के नाटकों की। हो गए 5 प्राकृतें हुई। ओके, सो मिडिल, हाँ हाँ, बोलिए, से टेल मी। हाँ, Okay, okay. गॉट, बोलिए आप Yes. हाँ, Yes, ओके। yes. प्राकृत इन मिडिल एज, तो मिडिल एज में महाराष्ट्री, मागधी एंड पैसाची, ये 3 प्राकृत स्पेशली। और महाराष्ट्री में तो बहुत अपार साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। हेमचंद्राचार्य ने 1119 यानी 1119 सूत्र जो प्राकृत ग्रामर में लिखे हैं, उसमें मेजर पार्ट महाराष्ट्री प्राकृत के सूत्रों को लेकर ही है, महाराष्ट्री प्राकृत। और जो स्पेशल स्पेशल रूल हैं, स्पेशल रूल लाइक शौरसेनी, मागधी, पैसाची, चुलिका पैसाची, अपभ्रंश, उसकी सम कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। अदरवाइज ऑल रूल महाराष्ट्री प्राकृत के। ये फोन आ रहा है किसी का, 1 मिनट में फोन उठा सकती हूँ? जी मैम, स्क्रीन भी मैक्सिमाइज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट। हेलो, हाँ, 1 मिनट। जी मैम, नाउ इज परफेक्ट।
Ma'am, your mic Yes. is off. Yes. Okay, yes, Now, yes. yes. Abhi, now visible? Yes. Now visible and Yeah, audible also. audible. There Okay. are some questions in the chat box. You can open in the side and you can answer Yeah, while. in session ending we can talk about question, no? या अभी बीच में ही बात करनी है? गुड इवनिंग मैम, आपका नमस्ते। बोलिए, नो वॉइस क्लियरली ऑडिबल। ओके, आवाज नहीं आ रही बराबर। वार्म मैम आप ग्रीटिंग। स्लाइड शो ऑन कीजिए, आपका स्क्रीन प्रॉपरली आ जाएगा। यस यस, स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी को? मैम आप स्लाइड शो ऑन कर दीजिए ना। मैम आधा अधूरा दिख रहा है, स्क्रीन पूरा नहीं दिख स्लाइड रहा है। शो पे क्लिक कीजिए आप, स्लाइड शो। एक मिनट, स्लाइड शो में कुछ दिक्कत आ रही मैम है। ऊपर, सबसे ऊपर हाँ, रिबन में। नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी मैम मेनू में देखिए, स्लाइड शो का एक ऑप्शन दे रखा है, उसमें जाके स्लाइड प्रेजेंटेशन वाला क्लिक कर हाँ, दीजिए तो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगा। नहीं दिस इज मेरा दिस एक इज एडिटिंग व्यू, दिस इज एडिटोरियल व्यू, जिसमें आप एडिट करते हैं ना प्रेजेंटेशन, वो वाला व्यू आपने चला रखा है। ऐसा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा आपको? एक मिनट, विजिबल और नॉट विजिबल? विजिबल है मैम, बट इससे भी ज्यादा वो हो वेरी सकता स्मॉल है। मीन्स इट्स वेरी स्मॉल, वी हैव टू पुट आप जो ऊपर जहाँ पे होम फाइल इंसर्ट जो ऑप्शन है ना मैम, उसी में बीच में देखिए स्लाइड शो वाला ऑप्शन है। एक्चुअली इसमें मैं कुछ राइट नहीं कर पाऊंगी ना, मेरे को पेन से कुछ करना है, तो इसी के लिए मैंने ऐसा ओके 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 किया। ओके। आई थिंक मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है पूरा, राइट? हम्म। ओके, मैं कल और भी कर सकती हूँ बराबर। सो मिडिल एज की बात हम अभी क्वेश्चन अभी लेने हैं या बाद में है? डिपेंड्स ऑन यू मैम, अगर आपको एंड में लेने हैं तो एंड में ले सकते ओके। हैं। Yes. तो अभी तक जो हमने बात की वो सभी को अंडरस्टैंड हो गई? इसमें कोई डाउट है क्या? या मैम डाउट है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा। या हाँ, बोलिए सर, आपका क्या क्वेश्चन है? चैट में ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, बट आई कैन रिपीट। या यू कैन आस्क। सबसे बेसिक क्वेश्चन मीन्स मल्टीपल डाउट, जब आप बता रहे थे तो मल्टीपल डाउट्स आ रहे थे। या बताइए, आप पूछ लिए, अभी पूछ लीजिए। या तो जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ओके। तो जस्ट टू गेट फील ऑफ इट, हम्म। प्राकृतिक कैसे साउंड करती है, प्राकृत या प्राकृतिक लैंग्वेज कैसे साउंड करती है। साउंड जैसे, हाँ, जैसे हम साउंड संस्कृत बोलेंगे। साउंड लाइक जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे ही। मैं एक सूत्र इसमें आपको बताती हूँ, इसी में से। परुषा सक्कय बंधा पाऊ बंधो विहोई सुउमारो पुरुष महिलाणम जेत्यमि हंतरम तेत्यमि माणम। ये प्राकृत का एक गाथा है कर्पूर मंजरी की। ओके, सो देवनागरी स्क्रिप्ट सिंपल। नहीं, स्क्रिप्ट का तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हाँ हाँ, ये साउंड कैसे करती है? तो right, साउंड इसमें क्या है, हम आगे रूल पढ़ेंगे ना ग्रामर के, उसके अकॉर्डिंग कि वो क्या सम चेंजेस होते हैं, संस्कृत से क्या डिफर करती है और प्राकृत की अपनी क्या खास विशेषताएं हैं। बाकी साउंड सिंपली हिंदी जैसे बात करते हैं वैसा ही है। परुषा सक्कय बंदा पाऊ बंदोवी होई सुउमारो पुरुष महिलाणम जेत्यमि अंतर तेत्यमि माणम। इसी तरीके से एक और गाथा जैसे मैं बोलती हूँ कि संजोगा विपमुक्तस्य अणगारस्य भिक्खुणो। अ, इसी तरह इंगियाकार संपन्ने सेविणीयेति उच्चैः। इसी तरीके सो सो प्राकृतिक ऐसे ही साउंड करती है हर रीजन में, कि से। हाँ, अगर हम अलग रीजन में बोलेंगे तो ऐसे साउंड करती है, एंड डिफरेंट रीजन में जाएंगे तो हाँ, प्राकृतिक या डिफरेंट या साउंड करती है। आपका क्वेश्चन अच्छा है। मतलब डिफरेंट प्राकृत जैसे एक एक पार्ट में अलग अलग जो उस समय की जन बोलियां थी 6th सेंचुरी बीसी की और उसके बाद भी, तो एक एक जैसे मथुरा इसमें जाएंगे, मथुरा जोन में तो वहां का कुछ चेंजेस मिल सकता है। जैसे अभी शोर शैनी की बात की तो इनिशियल अनादि अनादि और अनकंजक्ट असंयुक्त में त का द होता है। तो ये सुरसेन और मथुरा के आसपास वाली लैंग्वेज के लिए हो सकती है बात।
लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा रूल नहीं है। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र एरिया और उसके आसपास जो बोली डेवलप हुई उसमें ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो सम चेंजेस आपको मिल सकता है। Namaste, madam. या Okay, sir. हम्म Ma'am, I have some questions. Can I ask just now or at the end of session? Would you like to have it? अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद एंड में ही सारे क्वेश्चन की बात करेंगे मिलकर, ठीक Okay, है? ma'am. Thank you. अच्छा. ओके ओके। ओके तो ये जस्ट हिस्ट्री एंड इसकी डेवलपमेंट की बात है, ये हमारा मुख्य विषय नहीं है। मेन तो ग्रामर हमें पढ़ना है, बट यस देखिए, हम इसकी बात कर रहे थे मिडिल एज में, जो सेकेंड मिडिल इंडो आर्यन में जो मिडिल एज है, सेकेंड 100 BC से 200 BC से सेकेंड 600 AD तक का ये जो समय है, 400 AD 400 साल लगभग हो जाते हैं। इसमें 3 प्राकृत स्पेशली एग्जिस्ट करती थी, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी एंड पैसाची। तो महाराष्ट्री प्राकृत का बहुत इम्पोर्टेंस हम लोग सब जानते हैं, और इसमें जो है कथा, चरित, पुराण, महाकाव्य आदि अनेक तरह के लिटरेचर लिखे गए। और इसको प्राकृत यूज देम कैन बी कॉल्ड सामान्य प्राकृत, इसको सामान्य प्राकृत इन जनरल प्राकृत कह सकते हैं। एंड 3 फॉर्म्स ऑफ प्राकृत ऑफ दिस एरा फाउंड, इसमें एक महाराष्ट्री है ही, तो महाराष्ट्री जस्ट लाइक सोरसेनी आदि भी इसको कह सकते हैं, आर गिवन नेम्स ड्यू टू द डिफरेंट इन द प्लेसेस। यह मतलब सुरसेन में क्या होता है कि यहाँ जो बात आई है कि स्थान भेद से जैसे शोरसेनी आदि प्राकृतों के नाम दिए, उसी तरह महाराष्ट्र प्रांत में जो एक जन बोली डेवलप हुई थी उसको महाराष्ट्री प्राकृत नाम प्रचलित हो गया, ठीक है? कि जैसे शोरसेनी ना स्थान विशेष के आधार प्लेस के कारण है, तो वैसे ही महाराष्ट्र आदि प्रांत में जो एक लैंग्वेज बोली गई थी उसको महाराष्ट्री प्राकृत कहा गया है। और इसमें खास बात क्या है कि ये बहुत कोमल और मधुर, इसकी जो वर्ण है, ये सभी प्राकृतों में जो इन जनरल प्राकृत है, ये वर्ण अधिक कोमल और मधुर है। ओके, सो इसको कह सकते हैं कि प्राकृत सिम्स मोर सॉफ्ट एंड स्वीट, इसका प्रोनाउंसिएशन या इस टाइप के स्वर वोवेलाइजेशन इसमें अधिक दिखाई देता है। और इसमें जो विशेषता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही ग्रामर की दृष्टि से। नेक्स्ट प्राकृत की बात आती है मागधी प्राकृत। तो मागधी प्राकृत में इसमें क्या है कि मगध और उसके आसपास जो एक बोली डेवलप हुई थी वो मागधी प्राकृत है। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम मागधी इज नोन एज मागधी प्राकृत। और ये कॉमन लैंग्वेज थी, और समटाइम्स इसको ये राजभाषा होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, यानी सम्राट अशोक ने, किंग अशोक एंड अदर, मतलब कई राजाओं का शासन था उस समय, तो उसको राजभाषा भी बनाया था। और इसमें ये लोअर पीपल, यानी जो संस्कृत नाटक हैं, प्लेज है, संस्कृत प्लेज है, सो यूज्ड बाय लोअर क्लास कैरेक्टर इन संस्कृत प्लेज। और मागधी इज यूज्ड इन द, जैसे शकुंतला एक नाटक है, कालिदास के नाटक है, शूद्रकम ऋचकटिकम नाटक है, वहां पर ये जो रक्षी पुरुष, धीवर आदि मागधी लैंग्वेज बोलते हैं। रक्षी पुरुष मतलब पुलिसमैन, और धीवर बोले तो फिशरमैन आदि। सो लोअर क्लास कैरेक्टर्स संस्कृत प्ले में इसको बोलते हैं। ओके, इसकी भी विशेषताएं हम आगे देखेंगे। और एक है पैसाची लैंग्वेज। तो पैसाची लैंग्वेज भी ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, तो सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द कंट्री कॉल्ड पैसाची लैंग्वेज। और अभी इसका कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता है, प्रेजेंट में इसका कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता है। बट एक ग्रंथ था बृहत कथा, रिटन इन दिस लैंग्वेज, जो आज उपलब्ध नहीं है, नॉट अवेलेबल। ओके, तो इसकी विशेषता भी हम बाद में देखेंगे। और जो लास्ट है, एज ऑफ अपभ्रंश 600 AD टू 1000 AD। और इससे जो फर्दर कई सारी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, और इसका मूल शब्द है अपभ्रष्ट, अपभ्रंश फॉर्म ऑफ द प्रीवियस स्टेज ऑफ मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज। यानी हम भगवान महावीर से चले थे,
और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्राकृतिक अस्तित्व में थी। और लास्टली हम अपभ्रंश एज पर आए, और अपभ्रंश के बाद भी जितनी भी रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई थी, जैसे कह सकते हैं कि अम, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ये फर्दर डेवलपमेंट अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। ओके। और इसमें कई तरह की रचनाएं हमें मिलती है, जैसे पौम चर्यु, नाय कुमार चर्यु, रिठ नेमी चर्यु, जसहर चर्यु, महापुराण, कीर्तिलता, संदेश रासक, आदि आदि, डिफरेंट डिफरेंट मैनी मैनी लिटरेचर। और ये इसमें अपभ्रंश जो है और भी मतलब मोर इजियर फॉर्म है, प्राकृत का मोर इजियर फॉर्म इसको कह सकते हैं। अ, तो सो थर्ड स्टेज डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज है ये। ओके, इतना तक रखते हैं। ये विशेषताएं और ये और भी कुछ बात है फर्दर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की, वो कुछ करके ग्रामर पोर्शन पर आ जाएंगे। ओके, अभी किसी के कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। मैम हम बेसिक प्राकृत लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, सीधे ग्रामर पे आ जाएंगे? यस यस, बेसिक बेसिक ग्रामर से ही, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट एंड हाँ फर्दर हाँ जो चेंजेस है वहीं से ही। हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, या मींस या आई ये हैव नो इसी बैकग्राउंड ऑफ प्राकृत। या इसीलिए एकदम आ से जी हाँ, जी हाँ। आ कौन लो है, मतलब कौन शॉर्ट है, लॉन्ग है, इसी तरीके से जी मैम, थैंक यू। वेरी इनिशियल। ओके। मैडम, या नमस्कार मैडम। मेरे कुछ ज्यादा ही सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले हमने ये प्राकृत शब्द का अर्थ देखे तो जब पता चलेगा कि आप प्राकृत का अर्थ क्या लेते हैं। प्रकृति से है तो प्रकृति संस्कृत मानते हैं, या उसी भाषा की कोई पुरानी भाषा जो आपने प्री वैदिक भाषा समझी थी वो समझे थे? तो वो अगर क्लियर होता तो अच्छा होता। दूसरा पॉइंट है कि आपने जो इंस्क्रिप्शनल प्राकृत कहा था, तो इंस्क्रिप्शंस थे वो, उसमें आपने कहा कि अशोक की मागधी भाषा थी, वो राजभाषा थी। तो प्राकृत इंस्क्रिप्शनल लैंग्वेज में हमें प्राकृत सॉरी मागधी प्राकृत मिलता है क्या? ये एक मेरा बिल्कुल, प्रश्न है। तो मागधी दूसरा और मिक्सचर फॉर्म। इंस्क्रिप्शनल प्राकृत में मागधी तो मिलती ही है, शोरशनी भी मिलती है, समटाइम्स अर्धमागधी के एग्जाम्पल भी देखे जा सकते हैं, हाँ, ऐसा है। और समटाइम्स र, जो संयुक्त जॉइंट में र होता है, वो वाले फॉर्म भी अशोकन इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होते हैं। सो मिक्सचर फॉर्म है इंस्क्रिप्शनल तो जिस प्राकृत में, प्रदेश में जिस इसीलिए जो इंस्क्रिप्शन मिली है वहां वो मिल जाएगी, यानी अगर कोई इंस्क्रिप्शन नाला सोपारा महाराष्ट्र में हो तो उसमें महाराष्ट्री प्राकृत होगा। यस, हाँ यस करेक्ट, उसमें महाराष्ट्र का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखाई देगा। ओके, सो एज हम्म। पर द रीजन ही हैज चेंज द लैंग्वेज जस्ट। या और आपने कहा कि हम्म पाली भाषा भी हम प्राकृत में ही उसकी गणना कर रहे हैं, और जब हम जाके धम्मपद का पाली देख रहे हैं तो धम्मपद का पाली को ही हम प्राकृत का वर्जन कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, धम्मपद धम्मपद पाली में भी है, धम्मपद इवन इन प्राकृत में भी है। सो लैंग्वेज डिफरेंस है, नंबर वन बात। सेकंड, भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में अपने प्रवचन दिए उस समय वो बुद्ध वचन कहलाते थे। ये पाली शब्द जो है 13th century एडी में अस्तित्व में आया। ओके, सो पाली इज वन टाइप ऑफ प्राकृत, लेकिन चूंकि उसका अलग ग्रामर है, अलग लिटरेचर है, तो उसका लैंग्वेज का नाम ही पाली हो गया। अच्छा, तो हम जब बात बात कर रहे हैं धम्मपद की प्राकृत मिडिल एज में, सॉरी अर्ली एज में, तो हम्म, वो पाली भाषा में नहीं है, प्राकृत भाषा में कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम भी है प्राकृत धम्मपद, वहाँ ये कहा गया है प्राकृत धम्मपद। और उसमें बताया भी था कि पाली में भी धम्मपद प्राप्त होता है एंड प्राकृत ऑल्सो धम्मपद। अच्छा, और जो खारवेल की आपने इंस्क्रिप्शन कही थी, तो यस, खारवेल का जो अब अगर इफ यू गिव टाइमलाइन, आई थिंक इट वुड बी बेटर मैडम, कि खारवेल का पीरियड कब था, उसकी प्राकृत अशोक के खारवेल period से कब खारवेल अलग थी? हाँ, खारवेल का पीरियड था सेकेंड, सेंचुरी एडी। यस, सेकेंड सेंचुरी एडी नहीं, बीसी। ओके, सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी बीसी। अच्छा, तो वो और ओडिशा उससे में आता उससे लगभग 100 years बैक, मतलब पहले, अशोकन इंस्क्रिप्शन।
जी, तो उनके भाषा में हमें अंतर दिखाई देता है। तो खारवेल अगर ओडिशा में आता है तो उनकी भी मागधी भाषा होनी चाहिए या कौन हाँ, सी दिखाई देती है? वो भी मिक्सचर फॉर्म ही है, उसमें मागधी का फॉर्म कम मिलता है, इवन शोरशनी का फॉर्म अधिक दिखाई देता है। ऐसा लिंग्विस्टिक जो है, जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शनल प्राकृत पे, वो बताते हैं ऐसा। अच्छा, यस। ठीक है मैम, थैंक यू। Yeah, ma'am, I have also a few questions. या So, say somebody who is speaking Magadhi, hmm, हु uh, लोअर somebody, lower class people in Sanskrit plays, Dhivar, Machuara, or sometimes we can say और भी, मतलब मैडम इवन क्वीन नौकर स्पीक्स इन नौकर प्राकृत नौ, लैंग्वेज। नौकर भृत्य, इस तरीके से। यस यस मैम। Even Queen speaks in Prakrit language. She is not allowed to speak in Sanskrit. क्वीन Yes, ma'am. क्वीन रानी भी ऑलमोस्ट प्राकृत भाषा में बोलती है। रानी ऑलमोस्ट संस्कृत भाषा में और समटाइम्स शोरशनी लैंग्वेज में। नहीं, संस्कृत नहीं बोलती है मैडम। जो विदुषक भी संस्कृत में नहीं वसंत बोलते। सेना है, वो शूद्रक, ये जो नाटक है मृच्छकटिकम, उसमें शोरशनी लैंग्वेज में बोलते हुए बताई है। और जी जो राजा जो होता है, किंग जो होता है, वो संस्कृत में बोलता है, स्पीक करता है। एंड हाँ रानी शोरशनी और समटाइम्स संस्कृत। और लोअर, मतलब ये बेसिक छोटे सामान्य कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए हैं। अदरवाइज जी जी समटाइम जी चेंज भी हो सकते हैं। जी। But there is ma'am, a clear-cut division between the male and No, female part, and female never speaks in Sanskrit except some exceptional occasions. When she speaks on the statecraft, she is allowed to speak in Sanskrit. Otherwise, she always talks in Prakrit language. किंग, Queen यानी रानी। अच्छा किंग क्वीन, ओके ओके, Queen, yeah, या हाँ, नेवर स्पीक संस्कृत, और बट yeah, ऑलमोस्ट शोरशनी। yes. यस। ma'am, thanks for the information, but that was not my basic question. The question was not who speaks it. My question was if somebody is speaking Avadi Prakrit and अवधी, there is another person who is not Avadi, Magadhi, sorry, मगधी, Magadhi Prakrit, and somebody या is speaking Maharashtrian Prakritic. Can हाँ they understand? Both of them can understand each other. या अंडरस्टैंड, बिकॉज वेरी वेरी फ्यू डिफरेंस, राइट। So let me understand. What is the difference between current day Marathi and Maharashtrian Prakrit? करंडे महारा, क्या क्वेश्चन है आपका? Current day Marathi language या and हाँ, या some change, Maharashtrian Prakrit. या have some changes, No, developed form, actually developed form of Maharashtri, we can say so, Marathi, so who is the person who is giving this label that this is Prakrit? because development of Prakrit language all. So one would so there was like one Prakrit which everybody will in India will understand, and then now suddenly it split into No, Awadhi, Vaishali. some changes like the kada, and some changes the almost um, omit, and only vowel exist. So this type of some changes. Okay, I'm just trying to grasp. Okay, so how एक्चुअली is ये हमारा मूल विषय नहीं है, हमें तो बेसिक ग्रामर की बात करनी है, क्योंकि टुडे आज ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो बात आ रही थी, इसमें क्या क्या डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं प्राकृत के, और भी प्राकृत के बारे में क्या खास बात है, इसकी बात हम कर रहे थे। बट ठीक है, आपकी एक जिज्ञासा है, मतलब आपने पहले से पढ़ रखा है, आपके ध्यान में है। नो मैम, हमने पहले से कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी आता भी अच्छा नहीं। अच्छा, ओके, तो ये मगधी कुछ भी नहीं महाराष्ट्री, आता है, कुछ ओके, भी नहीं आता, मगधी भी नहीं आती, हाँ मराठी हाँ भी हाँ, नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है। जस्ट हम्म क्यूरियोसिटी है कि हम्म हम बहुत सुनते हैं प्राकृतिक 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 प्राकृतिक, हर हम्म जगह सुनते हैं। सो जस्ट वांट टू ग्रास्प व्हाट इज प्राकृत, क्या है? प्राकृत या प्राकृत इज लैंग्वेज। नहीं, वो तो प्राकृत इज लैंग्वेज बोलने से
हाँ It doesn't help me. कोई बोलेगा Spanish is a language, French is a language, English is a language, and somebody says Prakrit is a language. Oldest language, we can say oldest language, and contemporary to Sanskrit language, and मैं भगवान बुद्ध and भगवान महावीर मैं अपने प्रवचन हाँ I have a question. Yeah. If you are saying that Prakrit is a language, but Prakrit is a language, but there is no Sanskrit is also a language, Yeah, but Sanskrit is- Sanskrit has no variations. Malayalam is also a language. Malayalam has no like variations. But you are telling about Mhm. Prakrit. Prakrit is Magadhi, Ardhamagadhi, Shauraseni, Maharashtra, and there are so many many. different Prakrits are there. So, is the Prakrit is a group of languages or all these are dialects of one ancient Prakrit? I think that is the question raised by him. Yeah, बहुत अच्छा, good question. Correct. Yeah. Yeah. Because बार-बार repeat करने से same sentence does not give any new meaning. Okay. मेरे mind में क्या है? Tamil is a language, Malayalam is a language, Kannada is a language, and maybe they will. जैसे कोई बोलेगा ना मैं गांव का गवार हूँ तो मैं ऐसे हिंदी बोलता हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूँ तो मैं ऐसे हिंदी बोलता हूँ. जस्ट बाय, बट एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्राकृतिक है क्या, एंड हु इज गिविंग दिस लेबल. Who is giving this level? देखिए हम आगे कल और इस पे बात करेंगे कि प्राकृत जस्ट शब्द कहाँ क्यूरियसली से आया. जिज्ञासा है. हाँ हम तो किसी आर्बिट्री चीज की ग्रामर सीख लें, उसका कोई मीन्स होगा, कुछ पॉइंट होगा आगे फ्यूचर में होगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए. लाइक तो जैसे मेरे बाप दादा कुछ भी बोल रहे हैं और वो जिंदगी से बोलते आ रहे हैं, हजारों साल से बोलते आ रहे हैं, फिर कोई पढ़ा लिखा विद्वान आया बोलता है तुम प्राकृतिक बोल रहे हो. व्हाई डज ही केयर कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो यही बोल रहा था, मेरे बाप भी यही बोल रहे थे, मेरे जैसे दादा दादा सब जैसे यही 1000 साल से बोल हमारे रहे थे. हमारे घर में बूढ़ी दादी और बच्चे जो होते हैं तुतलाते हैं, उनकी Yeah. भाषा को हम एक बार प्राकृत भाषा कह सकते हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, जो नियमों से आबद्ध Yeah. नहीं होती है, और राइट. जिसको तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से तो जो जानवर बोल रहे हैं, या जो इंग्लिश बोल रहा है उस रीजन में, या जो फ्रेंच बोल रहा है उस रीजन में, या जो स्पेनिश बोल रहा है इस रीजन में, इन सबको हम बोल सकते हैं सब प्राकृतिक हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज है उस लैंड की. ये कहना तो मेरे लिए शक्य नहीं है. नहीं, मेरे लिए तो है ना पॉसिबल, क्योंकि मुझे बोलता है ये प्राकृतिक बोल रहा था, ये प्राकृतिक बोल रहा था, एक्चुअली तो मैं क्या सोच होता रहा था है, कि क्या एक्चुअली क्या प्राकृतिक क्या होता बोल है, रहा था. प्राकृतिक नहीं है, शब्द है प्राकृत. ओके, प्राकृत ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलती है. शब्द हाँ प्राकृतिक है, बट हम प्राकृत शब्द है. को नहीं. जैसे कोई देखिए राजस्थानी बोल रहा है तो मुझे समझ में आता है ये राजस्थानी बोल रहा है, मुझे समझ में आता है ये गुजराती बोल रहा है, मुझे ये समझ में आता है ये मराठी बोल रहा है, और मुझे ये समझ में भी आता है कि ये अवधी या ब्रज बोल रहा है. उनके बोलने से मुझे समझ में आता है. तो बट कोई प्राकृत की व्युत्पत्ति कैसे हुई और उसकी बात हम कल करें तो तिब्बती नहीं, मैं तिब्बत ओके, बट बताइए. ओके हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट अब इन बेसिक कंसेप्ट मैं समझना चाहता हूँ, प्राकृतिक है, प्राकृत है देखिए क्या? ये जो सामने स्लाइड है ना, जी दिखाई दे रजनीश रही है? जी, जो अभी प्राकृत की व्युत्पत्ति मतलब प्राकृत जो लैंग्वेज है उसका नाम प्राकृत क्यों पड़ा, द रीजन बिहाइंड द लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज आई है, इन सब के बारे में एक्चुअली सेशन 8 हो चुका है, तो इट्स गुड, मतलब हम कल के सेशन में ये बात करें तो ये ज्यादा बेटर या रहेगा. ठीक है, मेरे पास श्योर ये ऑल स्लाइड है और आपके सब क्वेश्चन का आंसर भी है. जी. एंड मैम या इफ पॉसिबल प्लीज ये शेयर हो जाएगा अगर, तो मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आपका स्लाइड उनको मिल जाए. ओके, आई विल शेयर. जी थैंक यू. थैंक यू विक्रम सर, एंड थैंक यू मैम. अच्छा